Next one is oxidation and reduction reaction. Here the name indicates oxidation means addition of oxygen and reduction or removal of hydrogen. Reduction means removal of oxygen or addition of hydrogen. So on the basis of this we can be classified oxidation and reduction reaction, and commonly it is also called as redox reaction. According to this oxidation definition, we classify this into two: addition of oxygen to a substance. For example, if we are taking that example here that magnesium react with oxygen, it will form its oxide, that is magnesium oxide. Second one, there is carbon combines with oxygen, it will form carbon dioxide. H2 react with O2, that gives water. These all are the examples of addition of oxygen. Removal of hydrogen, that means if the compound will split into two, that is here that example H2S, that will be split into H2 plus S. And another one is that we can give that example that CS3 CS2OH, and it will form CS3 CHO and H2. These all are the examples for the removal of hydrogen. If this both will be takes place, that means addition of oxygen and removal of hydrogen, that process we call as oxidation. For example, if we take an example of that H2S react with oxygen, it will form H2O and S. That means here the addition of what we called, there is the addition of oxygen and the removal of hydrogen, both will be takes place. Another one is that if we taking the reaction of HCl with MnO2, it also form MnCl2 and 2H2. Here also the hydrogen is removed from that HCl. That means here in these two examples, both addition of oxygen and the removal of the hydrogen takes place. यानी कि आप ये दोनों रिएक्शन देखोगे तो ये दोनों में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है, उसी तरह ऑक्सीजन का एडिशन भी हुआ है. अगर दोनों ये प्रोसेस हो रहा है, दैट वी कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी लेंगे तो इसमें भी ऑक्सीडेशन का मतलब अलग है. जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल मीन्स ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बताया कि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या तो इनमें से कोई सा भी एक कुछ भी हो, दैट मीन्स या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हो, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी इसका डेफिनेशन है कि जैसे अगर इसके अंदर कोई से भी मीन्स रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज और लॉस्ट, अगर इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटम का रिएक्शन हो जाएगा मीन्स, और वो किस में मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस्ट होगा तो वो क्या बनेंगे आपके Mg2 प्लस, वो जो है इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो उसमें आयन में कन्वर्ट होंगे, वो तो आपको पता ही है. द नेक्स्ट वन इज दैट रिडक्शन. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच that means same as that the removal of oxygen and the addition of hydrogen takes place, and same as that on the basis of that electropositivity also. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेम MgO, अगर MgO में से उसमें से Mg एंड O2 में वो कन्वर्ट हो जाएंगे. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है वो सल्फ़र के साथ कंबाइन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है सल्फ़र के साथ, तो H2S बन जाएंगे. पहले में ऑक्सीजन उसमें से रिमूव होके मैग्नीशियम बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन. सो we take that some more examples. For example, if we take that chlorine plus H2, it will form HCl, and sodium with hydrogen, it gives NaH. Okay, these all are the examples of some addition of hydrogen. Removal of oxygen, if we take that same as that H2O and carbon, it will form CO and वाटर. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो रिमूवल ऑफ वाटर है. अगर दोनों मिलेंगे, ओके, दोनों रिएक्शन उसमें होंगे, या तो इसमें से एडिशन भी हो जाएगा और सेपरेशन भी हो जाएगा, रिमूवल भी होगा, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे.
नाउ इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बेस पे अगर हम रिडक्शन को देखेंगे, व्हाट इज़ दैट? ए रिडक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होंगे। दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे केसेस में मीन्स ऑक्सीडेशन में there is a loss of electron, in reduction gain of electrons. Next is this redox reaction. The reaction in which one substance is oxidized and other is reduced is called redox reaction. Okay, that means both the oxidation and reduction process occurring simultaneously, that we call as a redox reaction or oxidation and reduction reaction. तो इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट विल गिव Fe एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? Fe2O3 में से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ओके, देयर इज अ रिडक्शन हुआ है एंड द सेकेंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आपका क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। तो ये दो प्रोसेस उसमें हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इसको कहा गया है रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक दैट MnO2 प्लस फॉर HCl इट गिव MnCl2 Cl2 एंड 2H2O। तो इसमें भी दोनों केसेस हुआ है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे इट विल फॉर्म कॉपर एंड H2O। इसमें भी दोनों केसेस हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार बुक में देख लेना। Next and the last topic is effects of oxidation reaction in everyday life, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ भी होता है। तो उसका क्या है उसका क्या इफेक्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में और उसका क्या प्रिवेंशंस है। तो फर्स्ट one is that corrosion. What is corrosion? The process of slowly eating up of the metals due to attack of atmospheric gas such as oxygen, carbon dioxide and water vapor etc. on the surface of the metal, so as to convert the metal into oxide and carbonate, maybe or sulfide etc. is known as corrosion. For example, non-example that is rusting. ओके, रस्टिंग मीन्स द कोरोजन ऑफ आयरन। तो इसमें क्या होता है? रस्टिंग में जंग पड़ना। तो उसमें क्या होता है? जैसे आपकी जो आयरन है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जो हमारे मोस्ट एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और मॉइस्चर भी होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे। इट विल बी फॉर्म है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। तो उसी को ही हम रेस्टिंग बोलते हैं। एंड अनदर वन एग्जाम्पल भी देयर दैट इज़ कॉपर। कॉपर में भी आपने देखा होगा कभी कभी मोस्ट एयर होंगे तो उसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी क्या बना देंगे? कॉपर कार्बोनेट, मीन्स बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे। जिससे क्या हो जाता है कि कभी कभी आपने देखा होगा जो कॉपर की जो भी यूटेंसिल्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं। Okay, next some more example, that is we take that silver. When silver react with hydrogen sulfide from air, अगर मान लो अगर एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो वो भी क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड में, और उसका भी कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे रिएक्शन है कोरोशन। ओके, दैट मीन्स इट इज़ द ईटिंग अप ऑफ द मैटर that we called as corrosion. And how to prevent this corrosion? There are some methods of preventing this corrosion, that means rusting also. Okay, for example, by painting the iron utensils, whatever articles. Second one, that greasing and oiling, and one is that important one is galvanization. What is galvanization? The coating with an thin layer of zinc. Okay, if we coating that any iron articles with this thin layer of zinc, that process we call as a galvanization process. Okay, it is you already studied in lower classes. Second, that is rancidity. Okay, first one corrosion, second one rancidity. When a food material prepared in for example in oils or that fats are kept for a long time, they start giving unpleasant smells and taste.
The fat and oil containing food materials which give unpleasant smell and taste are said to have become rancid or may be stale or sour in taste. मीन्स हो सकता है लॉन्ग टाइम तक हम किसी भी फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल मीन्स ऑयल के बने हो या फैट्स के बने फूड को अगर हम लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो उसका स्मेल और टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मीन्स टेस्ट में खराबी आ जाते हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उस प्रोसेस को तो हम रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी ये जो प्रोसेस है एक तरीके से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसके लिए क्या है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। मतलब आपने देखा होगा लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। सेम हैज़ दैट वी आर ऑल्सो यूजिंग सम प्रिवेंटिंग मेशर्स। फर्स्ट वन इज़ दैट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। Some antioxidants means to remove this oxidation process. First one is BHA, second is BHT. BHA full form, that is the name of the antioxidant. Okay, the first one is BHA, butylated hydroxy anisole. Second one butylated hydroxy toluene. Okay, first one BHA, butylated hydroxy anisole, and BHT, that is butylated hydroxy toluene. Second method is by packing fat and oil containing food in a nitrogen gas. Sometimes you found in that chips also, chips को भी हम long time हवा भरे रहते हैं, that is the nitrogen gas. Third one by keeping food in a refrigerator, वो तो आप लोग करते ही है. And fourth one by storing food in airtight container because it prevents that oxidation process. And the last one by storing food away from the light, क्योंकि लाइट एक तरीके से फोटोलाइटिक रिएक्शन भी होगा। सेकेंडली अगर हम लॉन्ग टाइम अगर फूड को रखेंगे तो टेम्परेचर भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होंगे। तो ये सारी चीज़ों से हम इस सबको रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस ऑल आर अबाउट दिस ऑल चैप्टर। ये बहुत इजी चैप्टर, यू कैन लर्न। ओके, हियर सम क्वेश्चंस